آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. اچھا جی، اب آج کے پروگرام کی شروعات میں نے کچھ سماجی رویوں کا جائزہ لیتے ہوئے لی تھی کہ کس طرح ہمارے یہاں لوٹ کھسوٹ اور ایک جاہریت جو ہمارے لہجوں میں ہے، ہمارے مزاج میں ہے، وہ اور زیادہ ہمیں نظر آ رہی ہے، چاہے وہ سیلیبریشن ہو یا کچھ بھی ہو. اس وقت ہم بہت پرائڈ کے ساتھ کہتے ہیں کہ الحمدللہ پاکستان کے قیام کو 79 ایئرس کمپلیٹ ہوتے ہیں، لیکن اس ویکینڈ پہ جس قسم کی سیلیبریشنز آپ نے دیکھی، سوال اٹھاتا ہے یہ ہمارے ہماری نیشنل ویلیوز کے اوپر، ہمارے اقدار کے اوپر، کہ ہم کس قسم کا معاشرہ، کس قسم کی قوم بنتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے خد و خال کیا ہیں. کچھ چیزیں گیون ہوتی ہیں، لوگ اس بات میں پرائڈ لیتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں، کل کسی نے مجھے کہا کہ ہیو یو بن ٹو ممدانیز نیو یارک، اور یہ ممدانیز نیو یارک اس کو اس لیے کہا گیا کیونکہ میئر ممدانی نے ود ان اے ایئر بہت ساری چیزوں میں تبدیلی لے کر آئے ہیں. اینڈ نیو یارک از چینجنگ فار دا بیٹر. لوگوں نے یہاں تک کہا کہ اب لوگوں کو قدرے محفوظ وہاں پہ وہ محسوس کرتے ہیں، ان کو ہر وقت اپنے فون کو، اپنے بٹوے کو، اپنے والیٹ کو کس کے پکڑنا نہیں پڑتا. چیزوں میں جب بہتری آتی ہے، یہ ایک رویہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو آپ کیسکیڈ کرتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ، ہمارے سامنے جو ویڈیوز آئیں اس میں سیلیبریشن سے کم ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی انتقام لے رہا ہے کہ او مائی گاڈ، یہ انڈیپینڈنس ڈے نا، میں نے اس بات کا انتقام لینا ہے کہ میں یہاں پہ کیوں ہوں. اور اس کے بہت سارے مناظر آپ نے دیکھے کہ آپ انڈیپینڈنس ڈے کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے اگر کیک کاٹ رہے ہیں تو اس کے اوپر لوٹ کھسوٹ مچ گئی. لوگوں نے ایک دوسرے کو دھکا دے کر کسی بھی طرح نوچنا، اس کو ایک چھینا جھپٹی کا ماحول، آپ نے ایک طوفان بدتمیزی کیا. پھر آپ نے قائد کے مزار کے کچھ مناظر دیکھے ہوں گے جہاں پہ ایک ہجوم تھا مردوں کا. میں نے تو وہاں پہ فیملی کو تو نہیں دیکھا، زیادہ تر لڑکے اور مرد حضرات ہی تھے وہاں پہ، جو پول میں چھلانگیں مار رہے ہیں، جن کی سیوک سینس بالکل زیرو ہے. اور کئی دفعہ ہم جب یہ باتیں کرتے ہیں نا تو لوگ کمپیئر کرنے لگتے ہیں کہ بھئی باہر بھی ایسا ہی ماحول ہے، باہر بھی لوگ ایسے ہی کر رہے ہیں. لیکن آئی فاؤنڈ اٹ ویری ویری گلیئرنگ. کہیں نہ کہیں ہمیں اس بارے میں بات کرنی چاہیے. اور جو ویڈیوز ہم بنا رہے ہوتے ہیں ان میں ہم کیا دکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے علاوہ لوگوں نے بہت عجیب و غریب قسم کے ڈانسز بھی ریکارڈ کیے جو کہ پبلک سپیسز میں ہو رہے تھے. یہ کس قسم کی سیلیبریشن تھی، سوال اس پہ اٹھایا جا رہا ہے. اینڈ ٹھیک ہے، شخصی آزادی آپ کو ہوتی ہے، فریڈم آف ایکسپریشن موجود ہے، لیکن دا پرپس اینڈ دا ڈپکشن آف دیز ویڈیوز دے ریز اے نمبر آف کویسچن. سو آئیے تھوڑا سا اس کو ایڈریس کرتے ہیں. پھر اس کے علاوہ کوئی بھی حادثہ یا کوئی بھی اس طرح کی چیز اگر کہیں پہ ہو جاتی ہے، تب بھی ہم نے دیکھا ہے کہ فوری طور پہ مدد کرنے کے بجائے ہم وہاں پہ لوگوں کا ایک ایک چھوٹا سا مجمع دیکھتے ہیں جو اپنے فونز نکال کر اس کو ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں. وائی ڈو وی فیل دیٹ انکلینیشن؟ اس سے ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم واقعی اس بات کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں، ایویڈنس کلیکٹ کر رہے ہیں؟ اس وقت سب سے زیادہ ضروری اگر کسی انسان کی مدد کرنا ہے تو ہم اتنے ڈسٹریکٹڈ کیوں ہیں؟ لیٹس ریز آل دیز ایشوز اینڈ انڈرسٹینڈ کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں. آپ ہمیں کال کر کے اپنے ایکسپیرینسز بھی شیئر کر سکتے ہیں. لیکن سب سے پہلے میں ہمارے پینل سے آپ کو انٹروڈیوس کرنا چاہوں گی. ہمارے ساتھ ہمارے کراچی اسٹوڈیو میں موجود ہیں انم. سیدہ انم علی از اے مائنڈ سائنسز کاؤنسلر اینڈ اے تھراپسٹ ایز ویل. یو کین گیٹ ان ٹچ ود ہر، ٹیک پرسنل سیشنز، گروپ سیشنز. بہت شکریہ انم آپ کی موجودگی کا. اس کے علاوہ سارہ مشہود ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ CEO ہیں ٹارک کی. تھینک یو ویری مچ سارہ فار بینگ ہیئر. سہیل سعید خان صاحب موجود ہیں جو کہ ایک لیکچرر بھی ہیں، اور اس کے علاوہ یو آلسو ورک ایز اے ریڈیو براڈ کاسٹر. بہت شکریہ سہیل صاحب آپ کی بھی موجودگی کا. انم، اگر سب سے پہلے گفتگو کا آغاز آپ سے کروں، یور ریئیکشن ٹو دیز 14 اگست ویڈیوز. یہ ویکینڈ ہم نے بھرمار دیکھی ہے ایسی ویڈیوز کی، آپ کا ریئیکشن کیا تھا؟ ریئیکشن ایگزیکٹلی ویسا ہی تھا جیسا ابھی آپ نے پروگرام کے انٹروڈکشن میں شیئر کیا. اس میں دو اینگلز مجھے ایسے نظر آئے یا میں نے محسوس کیے کہ معاشرتی طور پر اگر ہم دیکھیں تو یہ چیز اب آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے. ایک چیز تو یہ ہے کہ کچھ لوگ تو آپ سمجھیے کہ ایک جنرل ان کا ایک پیٹرن ہے، ایک بیہیویئر ہے کہ سیلف گین کے لیے، یا ہم جسے کہتے ہیں نا سوشل ویلیڈیشن بیہیویئرز میں بھی ہم کہتے ہیں کہ لوگ بعض اوقات اس طرح کی چیزیں کیوں کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہیں سوشلی کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو ویلیڈیٹ کروانا ہے. لیکن دوسری ہی طرف جو چیز دیکھ کر مجھے تھوڑی سی پریشانی محسوس ہوتی ہے، یا پھر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کیونکہ صدرہ ہم نے جب جشن آزادی کو ایکچولی میں منانا شروع کیا تھا تو وہ اسپرٹ کچھ اور تھا جو مجھے اب نظر نہیں آتا. اور جیسے ابھی آپ نے خود ہی اس بات کا ذکر کیا کہ ہم نے جو اس وقت انڈیپینڈنس کی تیاری دیکھی یا سیلیبریشن دیکھی، اس میں اسپرٹ تو کہیں نہیں تھا، بلکہ غصہ،
ग्रज और जेलसी थी. अच्छा, ये भी एक फैक्टर बनता है. अभी आगे जाके जब हम बात करेंगे तो मैं ज़रूर इसको मेंशन करूँगी. ये वो तमाम चीज़ें मिलकर हमारा एक बिहेवियर बना देती हैं और हम सोशली तो ये बहुत देखते हैं जो कि कहीं ना कहीं सप्रेस हो रहा है. कहीं ना कहीं जो चीज़ सही तरीके से चैनलाइज होनी चाहिए वो शायद अभी भी सदरा हो नहीं रही है, जिसकी वजह से जब ऐसे मौके आते हैं तो लोगों को एक्चुअली में समझ भी नहीं आ रहा होता कि उसको किस तरीके से निकालना है, और ये एक बिहेवियर बनता जा रहा है. आप हर साल देखें, ये लगता है कि कई लोगों ने ये भी कहा, और ये भी एक फेयर आर्गुमेंट है, लोगों ने कहा कि देखें भूख और अफलास भी तो है ना, आप हर एक से वो वाला एक्सपोजर एक्सपेक्ट ना करें जो आपका अपना है. लेकिन इसके बावजूद भी मैं अगेन आई वांट टू कम बैक टू द बेसिक क्वेश्चन कि सिर्फ और सिर्फ क्या तालीमी इदारे एक्सपोजर इन चीज़ों को राइट करता है, या एक जनरल ईथॉस भी तो होती थी ना. हमारे घर में अगर कोई चीज़ पकती है या हमारे घर के सामने हमें केक रखा जाता है तो बच्चे वहाँ पे भी तो तमीज़ का मुजाहरा करते हैं ना. ऐसा तो नहीं होता कि उस पर टूट पड़ते हैं. तो ये वाला आर्ग्यूमेंट कि भाई उनको एक्सपोजर नहीं था, इतनी आगे ही नहीं थी, उनको लगा कि दोबारा ज़िंदगी में ये मौका नहीं मिलेगा, इज़ इट दैट रीज़न? लेकिन फिर ये रवैये हम उनकी तरफ से भी देखते हैं जिन्होंने शायद ज़िंदगी में सैकड़ों केक खाए होंगे, जो हो सकता है उससे आधा घंटा पहले भी केक खा के आ रहे हो. तो हाउ एंड वेयर डज इट कम फ्रॉम आपके ख्याल में? ये मुझे ऐसा लगता है, देखिए आप पॉइंट ही अब इस वक्त आपने रेस किया, इसकी वजह ये कि आप देखें कि वो लोग जो कि जैसे हम बोलते हैं ना कि NLP में भी अक्सर कहते हैं हम कि मॉडल कर रहे हैं या हम दूसरे की पर्सनालिटी को या उसके एक्ट्स को मिरर कर रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली अगर मैं और आप देखें सदरा, तो एक तो वो तबका है जिसे हम कहते हैं कि शायद इतनी अवेयरनेस नहीं है, मे बी दे आर नॉट वेल एजुकेटेड, या उनको शायद उनका तरीका ही यही है अपने आप को वैलिडेट करवाने का. मगर दूसरी तरफ हम ये भी तो देखते हैं सदरा कि मैंने खुद ऐसे लोगों को विटनेस किया है जो अच्छे खासे समझदार हैं या जिनसे हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन क्योंकि अब सोशली चीज़ें इतनी ट्रेंडिंग हैं कि कई बार वो जो एक हल्की सी बाउंड्री बनती थी हमें नहीं समझ आ रहा कि उसको कैसे क्रॉस. अनम, मुझे ये भी लगता है कि माहौल का बहुत फर्क पड़ता है. अगर हमें किसी ऐसी जगह मौजूद हैं जहाँ पे सब कोई काम, कोई गलत चीज कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि यू आर एब्सोल्युटली राइट. लेकिन दैट इज वेयर वो जो तफरीक है ना कि आपके अपनी अक़दार, यानी इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपको मौका मिल रहा है कुछ गलती लूट खसूट करने का या नहीं. आपके अंदर एक जिसको कहते हैं ना अना होती है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है कि यार मैं इस तरह ये नहीं कर सकता. सारा आई थिंक दिस इज रेजोनेटिंग विद यू as well, कि आप छोटे बच्चों को देखें तो अगर आप उनको यानी हर चीज़ में उनको बताना नहीं पड़ता कि बेटा ऐसे नहीं करना चाहिए. there are certain things that a child will never be inclined to do. वो कभी किसी को धक्का नहीं देगा, कभी किसी के साथ एक अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं कर रहा होता. these are all learned behaviors. तो हम ये कहाँ से और कैसे सीख रहे हैं? आपकी इसके ऊपर क्या राय है? थैंक यू वेरी मच. सबसे पहले जो आपने कहा माहौल के बारे में, आई फील माहौल हैज़ अ रियली बिग रोल टू प्ले. Now, since you also mentioned the kids, imagine there's a teacher who's very lenient, who doesn't care about the class. बच्चे आते हैं क्लास में, उनकी जो मर्जी है वो कर लेते हैं. दूसरी तरफ एक ऐसी टीचर है जो स्ट्रिक्ट भी है, वो करने भी देती है, फ्रीडम विद डिसिप्लिन को फॉलो करती है. Where do you think मतलब बच्चे जो है वो हर चीज़ ट्राई कर रहे होंगे, उन्हें मैनर्स भी नहीं होंगे, एटिकेट भी नहीं होगा, पता भी नहीं होगा क्या करना है, उन्हें जो करना है वो करेंगे, उन्हें सिखाया भी नहीं जा रहा है, टीचर को भी फिक्र नहीं है, केयर फ्री एटीट्यूड चल रहा है. आपने माहौल का जिक्र किया, पाकिस्तान को लें और फिर किसी और मुल्क को लें. यहाँ पे हम क्लोज वाइज कर लेते हैं, दुबई को लेते हैं, तो यही लोग वहाँ पे जाके तो बड़े तमीज से सब कुछ कर रहे हैं, रूल्स फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो ट्रैफिक हो या वो किसी खातून के साथ बातचीत करना हो, किसी किस्म का कोई भी यहाँ पे डिसिप्लिन आप लगा लें, they will follow those rules there no matter what happens, because एक स्टिक रूल चल रहा है, right? But when it comes to Pakistan, why is it that we don't even know or have the manners to get excited or to have fun? मतलब 14 अगस्त है, 14 अगस्त में आप अपने परचम की बात कर रहे हैं, अपने वतन की बात कर रहे हैं, तो वो स्पिरिट कहाँ गई इन वीडियोस में? मैंने तो उस तरह की कोई वीडियोस नहीं देखी. हाँ, मैंने पुरानी वो जो घिसी पिटी पुरानी तरीन थी उसको आपने रिपोस्ट कर दिया, सही है, बट व्हाट काइंड ऑफ फन वाज दिस? जहाँ पे आपने कायदे आज़म के मज़ार का जिक्र किया, जहाँ पे लड़ाइयाँ चल रही, एक दूसरे को पीट रहे हैं, मार रहे हैं. Is this what Pakistan is all about today? मतलब I'm ashamed as well as embarrassed about the situation that we're in right now, and I think this calls for not just the hukumat but also people who are around, people who are in this country to take some positive, action towards this and start working on it by themselves. अपने घर से शुरू करो, ये कहते ना,
तो वो अपने घर से हमें शुरू करनी है. बिल्कुल सही कह रही हैं सारा. सोहेल साहब, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि ये जो हमारे समाजी रवैयों की तनज़्ज़ुली है, बदहाली है, इसकी क्या वजह है? क्या आप इन लोगों को ब्लेम करेंगे? क्या आप हुक्मरानों को ब्लेम करेंगे? क्या हमारी लैक ऑफ प्लानिंग के बारे में बात करेंगे? व्हाई डू यू थिंक वी आर वेयर वी आर? जी, बहुत अच्छी बात आपने पूछी और बड़ी उम्दा सवाल है आपका. मैं इसमें एक बात कहूँगा. हमने जो काम छोड़ दिया वो करने का, वो था तरबियत का, और उसमें हमारी वैल्यूज हम सिखाया करते थे. डिसिप्लिन जो है वो वैल्यूज से, डिसिप्लिन से ज़्यादा बरतर जो चीज़ है वो वैल्यूज, यानी अपनी अक़दार की पहचान या अपनी अक़दार पर कायम रहना. अब वो सिलसिला हमारा तर्क हुआ. अच्छा, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जैसे अब ये वैल्यूज जो है हर जगह, जैसे गाँव में अपनी अक़दार हैं, शहरी अक़दार मुख्तलिफ हैं, टाउन्स की अलग हैं, तो ये छोटे तहसीलों की या छोटे कस्बों की कैफियत ज़रा मुख्तलिफ है. तो रहन सहन के जो अंदाज थे ना मुख्तलिफ, उनको जब शहर की तरफ आते थे वो लोग, तो वो वहाँ पर देखते थे कि वो ज़्यादा सिविलाइज तरीके से रह रहे हैं, तो अपने आप को वो महसूस करते थे कि अब हम कहीं कमतर नजर ना आए, तो वो उन जैसा बनने की, उन जैसा ढालने की कोशिश करते थे. लेकिन जब पूरा का पूरा मंजरनामा ही तब्दील हो गया और एक नई दुनिया आबाद हुई है जिसमें कि एक गैर तरबियत याफ्ता, वैल्यूज का ना जानना, या फिर अपने इलाके को छोड़ करके दूसरे इलाके में जा करके हम तो यहाँ आज़ाद है, हमारा कौन सा यहाँ कोई बड़ा देख रहा है, फिर उसके बाद एक नई कैफियत पैदा हुई है. बिल्कुल सही कह रहे हैं सोहेल साहब. और इसमें आपको इट मेक्स यू क्वेश्चन कि हमने कैसे तरबियत की है ना. कई चीज़ें जो हम पहले कहते थे ना कि भाई वन कुड गेट अवे विद दैट. मिसाल के तौर पे ख़वातीन को वोट देने का हक़ अभी रिसेंटली मिला है. ख़वातीन हर शोबाए ज़िंदगी में आगे आ रही हैं, लेकिन उनकी जो फाइनेंशियल इंक्लूजन होती थी, जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होती थी, इट इज़ क्लियरली अ न्यू फिनोमेना. तो हम कहते थे जो नए रवैये, नई चीज़ें बदल रही हैं. पहले आप कई चीज़ें कह के गुजर जाते थे, आप किसी को उसकी रंगत पे, चीज़ों पे टोक सकते थे, लेकिन अब माशरे इवॉल्व हुए हैं और इन बातों को दुनिया भर में मायूब समझा जाता है. लेकिन हम फॉर्चुनेटली इस तरह के रवैयों में और रिग्रेस कर रहे हैं. दुनिया अगर एक सिमत में जा रही है तो हम दूसरी सिमत में रिवर्स गियर लगाए हुए हैं, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट. मैं आपको मिसाल देती हूँ कि अगर आप दुनिया में कहीं पे भी अपने पालतू जानवर के साथ अगर उसको वॉक पे लेकर निकलते हैं और वो कहीं गंदगी करता है, तो आप अगर वो ना उठाएं, इसके लिए कोई रूल्स की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए कोई फ़ाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपने अपने पालतू जानवर के पीछे सफाई नहीं की तो माशरती तौर पे, समाजी तौर पे लोग आपको बुरा समझते हैं और आप उस बर्न को फ़ील कर पाएंगे. आपको तुर्की की मिसाल दूँ, वहाँ पे जो स्ट्रे कैट्स होती हैं, जो किसी की ओनरशिप नहीं होती, वो वहाँ बस मौजूद होती हैं, उसको भी स्टेट ओन करता है. अगर आप किसी गली मोहल्ले अपने घर से ही उसको धुतकारने की कोशिश करें उस जानवर को, तो इर्द गिर्द के लोग बड़ा आपको हैरत से देखते हैं कि किस किस्म का संगदिल इंसान है. लेकिन हमारे यहाँ किस किस्म के मनाज़र आ रहे हैं. आपने अपने बच्चों को वो 10-10 रुपए के, 100 रुपए के बाजे लेके दे दिए हैं और वो घेर के खड़े हैं एक बिल्ली को और उसके ऊपर वो बाजा बजा रहे हैं और वो सहमा हुआ जानवर उनकी तरफ देख रहा है. एंड वन रियलाइजेस कि यार ये जो बेसिक चीज़ें हैं कि दूसरी जानदार मखलूक के साथ किस अंदाज में पेश आना है, इसके लिए तरबियत कैसे की जाए, किस तरह इसको कोई इंजेक्शन लगाया जाए लोगों को, कोई सॉफ्टवेयर उनके दिमागों में डाउनलोड किया जाए. दीज आर क्वेश्चन दैट आर बिफोर अस. और इस पे बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. अच्छा जी, हमारे रवैये, जिस किस्म की वीडियो सामने आ रही हैं, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि वाकई जन अल्फ़ा, जन बीटा क्या याद करेगी. यानी हमारे जहनों में तो फिर भी, चाहे वो कहें कि अब बहुत ही क्यूरेटेड इमेज था, उस ज़माने में एक मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हुआ करती थी जो डिक्टेट करती थी कि आपने 14 अगस्त की क्या थीम होगी, किस तरह उसको विजुलाइज़ किया जाएगा, कैसे नगमे बनेंगे, कैसी ट्रांसमिशन होगी. बट एटलीस्ट वी हैव सम गुड ओल्ड डेज़ की मेमोरीज़. वरना हम मजाक उड़ाते हैं ना कई ऐसे लोगों का जिन्होंने अपने परचम के बड़े अजीब व गरीब किस्म के लिबास बनाए हुए होते हैं. हम उससे बहुत दूर नहीं हैं. हमारी हरकतें, हमें समझ नहीं आ रहा कि हम करना क्या चाह रहे हैं. हमें एक सनरूफ वाली गाड़ी चाहिए, कुछ ख़ास किस्म का कंटेंट हमने बनाना है परचम को लेकर, एंड इट इज़ जस्ट माइंड बॉगलिंग एज टू वट एवर इज़ हैपनिंग अराउंड अस. लेकिन सोहेल साहब, इसमें जब मैं गुफ्तगू को दोबारा जोड़ती हूँ, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि इंसानियत और तरबियत
यानी क्या इंसान को इंसान बनाने के लिए भी तरबियत बहुत ज़रूरी है? आर दीज नॉट, यानी अगर आप स्कूल ना गए हों, कॉलेज ना गए हों, तो क्या आप इन बेसिक अक़दार से भी आरी हो सकते हैं आज के ज़माने में, साल 2026 में, जबकि कहा जाता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी नॉलेज है, वो तो आपकी फिंगर टिप्स पे है इस वक्त? जी, बात सारी ये है कि जो फिंगर टिप पर मौजूद, आप कह रहे हैं ना कि इंफॉर्मेशन मौजूद है, उस इंफॉर्मेशन का इम्पैक्ट क्या आ रहा है और उस इंफॉर्मेशन ने हमें क्या फ़ायदा पहुंचाया? सीना बसीना या एक से दूसरे को जो तरबियत मुंतकिल होती थी, जो दादी ने पोते को मुंतकिल की या माँ बाप ने अपने बच्चों को मुंतकिल की, उसका इम्पैक्ट क्या था? आज हम कैसे खड़े हैं? और अब जो अंदाज हमारे अंदर वहशत आई है, वो छोटे छोटे रील्स देखने के बाद ज़्यादा फर्क पड़ा है, या पहले जब किताबें पढ़ा करते थे या माँ बाप जब बताया करते थे वो अंदाज क्या था और आज का अंदाज क्या है, वो वहशत से सवार हो गई है। अगर हम देखें कि जिस इंफॉर्मेशन को हम इंफॉर्मेशन समझ रहे हैं, इंसान का लाजिम है कि उसको तरबियत के लिए दूसरे इंसान का होना ज़रूरी है। हम समझते हैं कि इंसान की तरबियत के लिए एक किताब काफ़ी है, तो लाइब्रेरी से तो कोई भी नहीं आज तक पढ़ सका, और लाइब्रेरी से कोई काबिल न बन सका, कोई दानिश्वर न बन सका। उसके लिए उसे उस हल्के को इख्तियार करना पड़ता है, उस माशरे को, उस माहौल को इख्तियार करना पड़ता है जहाँ एक महज़्ज़ब दुनिया आबाद हो। अब जैसे मिसाल के तौर पर जापान की दुनिया में, अब मैं अगर मिसाल छोटी सी दे दूं आपके सामने, कि अगर किसी के पैर पर पैर आ जाए जी, तो जिसने पैर रखा था वो भी सॉरी करता, और जिसके पैर के ऊपर पैर आया था वो भी सॉरी कर रहा है कि मैंने गलत जगह पैर रख दिया, कि आपको अजियत हुई और आपका पैर मेरे पैर के ऊपर आ गया। तो यानी अब आप ये देखिए, ये क्या चीज़ है? ये एनवायरनमेंट है, ये एक पूरी 100-150 साल के साइकिल है। अब हमने ये साइकिल तर्क कर दिया, वालिदैन ने भी तर्क कर दिया, ये सिलसिला दूर होता चला गया, हम अब तरबियत से दूर हो गए। मैंने अभी शुरू में यही कहा था कि वैल्यूज़ चली गई। मेरी माँ ने जो मुझे बताया था कि अगर आपने अपनी इज्जत या अपने माँ बाप को बुरा नहीं कहलवाना तो ऐसे जीना है। उन्होंने जो ढंग बताया, जो करीना बताया, उस पर अमल पैरा होकर के बचते बचाते निकलते गए कि कहीं किसी वक्त कोई जुमला हमारे माँ बाप के अगेंस्ट ना चला जाए। इस कैफियत का नाम ही वैल्यूज का कायम रखना है, अपने दिल को जमा के रखना है। अब ये दिल जमाने की बात ही खत्म हुई। अब तो ये कहते हैं जितना अच्छा, वो जो छोटी छोटी रील्स आ रही है ना, वो छोटे छोटे कार्निवल्स हैं, उसमें हा हू चीख पुकार दुनिया भर में हो रही है। तो ये एक अजीब वहशियाना अमल है। अच्छा, ये जस्ट बिल्कुल सही कह रहे हैं सोहेल साहब। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और गुफ्तगू को आगे लेके चलती हूँ, अनम, पहले हमेशा ये बात कही जाती थी चंद बुरे लोग, यानी ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं वो चंद लोगों के कारनामे हैं, चंद लोगों की अख्तार हैं, और ये पूरे माशरे की अक्कासी नहीं करते। दिस इज़ नॉट हु वी आर, यू नो, जस्ट अ वेरी स्मॉल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी। लेकिन जो भी आप ऑब्ज़र्व कर रही हैं, जो आप एक्सपीरियंस कर रही हैं, क्या ये वाकई बहुत कम तादाद के लोग हैं या हम उमूमी तौर पर अब ऐसे होते जा रहे हैं? सिद्रा, हम अमूमी तौर पर ऐसे होते जा रहे हैं, और जो मैं देख रही हूँ बतदरीज लोगों के अंदर जो एक बिहेवियरल, जैसे हम कहते हैं ना, तब्दीलियाँ चेंज हो रहा है, एक तब्दीलियाँ आ रही हैं। अच्छा, वो जो बिहेवियर है सिद्रा, जैसे अभी सोहेल साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, उसमें सिर्फ सोशल मीडिया और रील्स ही हमारी तरबियत और हमारी, जो आपने बड़ी अच्छी बात अभी एक पॉइंट रेस किया था कि इंसानियत और तरबियत में क्या बहुत ज़्यादा फ़र्क है। रील्स तो कर ही रही हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड, जैसे अभी हम इन्वायरमेंट की बात कर रहे थे, थोड़ा सा अगर हम सोशल मीडिया से भी बाहर निकल के देखते हैं तो भी ये चीज़ मैं महसूस कर रही हूँ कि अगैन वही वाली बात कि क्योंकि रवैयों में भी बड़ी तब्दीली हो गई है। और हम नफ्सियात में एक बड़ी सिंपल सी बात कहते हैं, जैसे अभी आपने शुरू में एक बात कही थी, एक तो चीज़ ये है कि कुछ हमारे एक्ट्स ऐसे हैं सिद्रा, या कुछ हमारे बिहेवियर्स ऐसे हैं जो कि जेन्युइन हैं। जैसे हम कहते हैं कि अगर आप किसी के लिए कोई हमदर्दी भी कर रहे हैं तो वो आपकी जेन्युइन एम्पैथी है जो नज़र आती है, लेकिन कई बार आपकी परफॉर्मेटिव काइंडनेस भी होती है। इसी तरीके से कुछ आपके और हमारे बिहेवियर्स जो हैं वो अब परफॉर्मेटिव काइंडनेस, परफॉर्मेटिव एम्पैथी की तरफ चले गए हैं। दैट मीन्स जिसमें बहुत सारे बिहेवियरल मसाइल आते हैं, यानी आप स्पेसिफिकली एक ऐसा रवैया इंटेंशनली बना रहे हैं सोसाइटी में फिट होने के लिए, ये सोचे बगैर कि इसमें मेरी मॉरल्स क्या हैं, मेरी वैल्यूज़ क्या हैं, लेकिन क्योंकि आपको फिट होना है तो अब आपका एक ऐसा बिहेवियर बनेगा कि जिसमें आपने हर वो चीज़ करनी है जो आपके आसपास के लोग कर रहे हैं, ये जाने बगैर, समझे बगैर कि क्या इस चीज़ के आगे कॉन्सिक्वेंसेस मुझे बेहतर मिलेंगे या मैं कर क्या रहा हूँ। स्पेस भी बन गई है, भी बन गई, यानी हम इतने इंडिविजुअलिस्टिक हो गए हैं कि अगर हम कोई चीज़ इस तरह की करते हैं तो वो जो पहले एक खौफ होता था, सोशल प्रेशर होता था कि लोग क्या कहेंगे, और जिसकी हम बड़ी बुराइयां करते थे कि भाई हम क्यों सोचें लोग क्या कहेंगे, हमने वो करना चाहिए। लेकिन अब जब इस खौफ से आज़ाद हुए हैं
کوئی بہت بڑے کارنامے نہیں کر رہے, ہم طوفان بدتمیزی برپا کر رہے ہیں, اور یہ بھی اس کے اوپر پھر سونے پہ سہاگا جس کو کہتے ہیں نا ڈھٹائی کے ساتھ پھر ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ لوگ جس نے جو سوچنا ہے سوچے, ہم تو یہی بدتمیزی کریں گے. تو اٹس اے ویری اسٹرینج پلیس دیٹ وی آر ایٹ. ایک چھوٹا سا بریک لیتے, واپس میں سارا کے ساتھ آؤں گی اور ان سے پوچھوں گی کہ کیا کوئی حل نظر آ رہا ہے یا ابھی تو شروعات ہے, آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا. ایک چھوٹا سا بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اچھا جی, نفسا نفسی کا یہ عالم چند برے لوگ نہیں, اب ہمارے جو میجورٹی کے رویے ہیں وہ بدلتے چلے جا رہے ہیں. شاید میجورٹی باہر نکل کے اس طرح کی بے ہنگم ایکٹیویٹی نہیں کر رہی ہوگی, لیکن میجورٹی اس پہ احتجاج بھی نہیں کر رہی ہے. سوال یہ ہے کہ جب بھی کوئی پروٹیسٹ ہوتی ہے, لوگ کسی چیز کی کریکشن کے لیے نکلتے ہیں, ہر انسان ایک ہی لیول پہ نہیں ہوگا. ہر انسان کی وہ جو اس کے بارے میں پیشن ہوگا یا جو اس کے بارے میں فیلنگز ہوں گی وہ ایک جیسی نہیں ہوں گی. بٹ یو فیل اسٹرانگ انف ٹو اسٹیپ آؤٹ, دیٹ کین بی ٹیکن ایز اے بیسک بیرومیٹر. اب ذرا بات کرتے ہیں کہ اس میں سدھار کیسے لایا جائے. معاشرے کی بہت ساری برائیوں کو کافی عرصے تک, کئی دہائیوں تک ہم اسٹڈی کر کے یہ کہتے رہے ہیں کہ یار یہ ایجوکیشن کی کمی ہے. لیکن آج یعنی اگر پاکستان کو اگر آپ تاریخی پس منظر میں دیکھیں, دس از پروبیبلی دا بیسٹ ایجوکیشن لٹریسی ریٹس دیٹ وی ہیو ہیڈ. یعنی آج سے 20 سال پہلے تو اس سے بھی کم لیول تھا, لیکن اس کے باوجود اقدار نظر آتا تھا کہ زیادہ شاندار ہیں یا اس حد تک تنزلی کا شکار نہیں ہوئی ہیں. تو ایجوکیشن کو صرف اور صرف یہ کہنا کہ اس کی وجہ سے یہ سارے بگاڑ, یہ ساری پرابلمس چلی جائیں گی, پروبیبلی از ناٹ اے ویری اسٹرانگ آرگیومنٹ. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہو کیسے سکتا ہے. تو انم, اس کا آپ کا کیا اس پہ رسپانس ہوگا؟ صدرا, کہنے کو تو بہت ہی ایک سمپل سی بات میں ابھی کہوں گی, لیکن یقیناً کرنے کے لیے یہ بہت چیلنجنگ ہوگی. دیٹ از کہ اگر میں اور آپ ایز سٹیزن, ایز مسلمس یا سارے کچھ چھوڑ دیں, صرف ایک انسانی لیول پر یا ایز ہیومن اگر ہم یہ سمجھیں کہ میں رسپانسبلٹی لیتی ہوں یا میں اکاؤنٹیبل ہوں ایک چھوٹے سے ایکٹ کے لیے بھی, جہاں ہم کسی بھی سڑک پہ چلتے ہوئے جانور کا خیال کرتے ہیں یا کسی بھی پروٹیسٹ میں جا کر اپنی آواز اٹھاتے ہیں یا کسی بھی ریل کو دیکھ کے, یا ایسی ریل جو بہت پرووکٹیو ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ اس کو میں روک سکتی ہوں, اس میں اگر صرف ایک کمنٹ کر دیتی ہوں, صرف ایک جملہ لکھ دیتی ہوں, کئی بار وہ بھی میری اور آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کا سبب بنتا ہے. تو چینج کی جب ہم بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں چیزیں ٹھیک کیسے ہوں گی, تو اس کے لیے کئی بار صدرا ہم اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ کوئی بہت بڑے محاذ میں نہیں اترنا ہوتا, کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے ایکٹس آپ کو کرنے ہوتے ہیں. اینڈ اگین وہی کہوں گی ریگولرلی کرنے ہوتے ہیں. جب دیکھیں, جب بہت گلیئرنگ ہو جاتی ہیں چیزیں, جب آپ اب آپ اس بڑے ٹرکی دوراہے پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پہ لائن مزید کراس ہونے میں 1 سیکنڈ کی گیم ہے. بالکل, یعنی یہ چیزیں وائلنٹ بھی ہو سکتی ہیں, یہاں پہ اور بڑی بدتمیزی بھی ہو سکتی ہے, قتل و غارت بھی ہو سکتی ہے. پھر آپ سوال کریں گے کہ بھائی اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی, اسٹیٹ کو 144 سیکشن لگا دینا چاہیے, جس کا مطلب ہے کہ ہجوم اکٹھا ہی نہ ہو, یا کچھ لائنز ڈرا کرنی چاہیے. سم ایکشنز شوڈ بی پنشبل بائی لا. یعنی جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ جی پرچم کی بے حرمتی نہیں ہو سکتی, وغیرہ وغیرہ. آپ سمجھتی ہیں سزا دے کر اس معاشرے کو درست کیا جا سکتا ہے کسی حد تک؟ جیسے ابھی بڑی اچھی بات کی تھی انہوں نے کہ اگر ہم یہیں سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں, دبئی میں جاتے ہیں یا کسی اور ملک میں جاتے ہیں, تو وہاں ہم سیدھی سی بات ہے نا, ہم کچرا پاکستان میں روز دیکھ رہے ہوتے ہیں, کراچی, لاہور, اسلام آباد میں, کہ لوگ کس طریقے سے خیال نہیں کر رہے. اسی کی بنسبت میں اور آپ یا کوئی بھی سٹیزن جو ہے وہ جا کے کہیں اور کچرا نہیں پھینک سکتا, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ مجھے پیسے دینے پڑیں گے. اس میں دونوں چیزیں ہیں صدرا. ضرورت سے زیادہ سختی بھی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ وہ بھی مناسب نہیں ہے, وہ بھی پھر ہیومن لیول پہ آپ کے بیہیویئرس کو زیادہ اوفینسو کرتی ہے. سختی بھی ہونی چاہیے. اینڈ اگین کہوں گی کہ تھوڑے سے رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں وہ مجھے اب ایسا لگتا ہے کہ کیونکہ اب ہم اس پوزیشن پہ آ چکے ہیں یا اس کگار پہ پہنچ چکے ہیں کہ جہاں پر ریسٹرکشنز یا رولز جو ہیں وہ جو پرانے تھے نا صدرا, جیسے ابھی آپ نے ایک بات کہی اور مجھے یاد آ گئی بات کہ بچپن سے میرے ذہن میں یہ بات ایک کنڈیشن ہوئی ہوئی ہے کہ اگر 14 اگست ہم نے منا لی اور جھنڈیاں اگر زمین پر ہیں تو ہمیں کوئی بتاتا نہیں تھا کہ جھنڈیاں اٹھانی ہیں, ہمارے اندر یہ چیز کنڈیشن تھی. لیکن انم, اگر میں اس کو اس طرح دیکھوں کہ اگر کسی نے سزا اور جزا دینی ہے نا, جیسے آپ گھر میں ایک اتھارٹی فگر ہوتا ہے, یا تو آپ کے دادا دادی ہوتے ہیں یا آپ کے والدین ہوتے ہیں, آپ کہتے ہیں یہ بزرگ ہیں, یہ ہم سے ابو ہیں, and they are setting rules. تو ایک مورل ہائی گراؤنڈ ہوتا ہے. ہمارے معاشرے کی اس وقت سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ مورل ہائی گراؤنڈ کسی کے پاس نہیں ہے. دوسری چیز, جو اگر آپ مورل ہائی گراؤنڈ کو بھی چھوڑ دیں تو it has to be a rule for everybody. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک بائک پہ 2 لڑکے جا رہے ہیں اور انہوں نے کوئی بدتمیزی کی تو ان کو پکڑنا, دھرنا, ان کو پوری رات لاک اپ میں رکھنا بہت آسان ہے. لیکن اگر ایک بڑی مہنگی گاڑی میں کوئی ڈرنک ڈرائیونگ کر رہا ہوتا ہے
तो उसको रोकने में जिसको कहते हैं ना पर जलते हैं. वही वाली बात है ना सिद्रा कि ये सिस्टम उसके साथ कहीं ना कहीं मिला हुआ है. एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखिए सिद्रा, अगर मेरे और आपके पास या हमारी आने वाली जनरेशन के पास कोई रोल मॉडल नहीं है, सो उसके बाद दूसरी चीज़ क्या नज़र आती है, या तो फिर हमारे वो बच्चे या हमारे आने वाली जेन ज़ी, जेन अल्फ़ा, फिर वो खुद रोल मॉडल बने. और देखिए ऐसी बात नहीं है सिद्रा, हमेशा आपके प्रोग्राम में मुझे अच्छी बात ये लगती है कि आई थिंक कुछ ही ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो पाकिस्तान की गुड साइड अच्छी पिक्चर भी दिखाते हैं. अभी मैं देख रही थी कि माशाल्लाह बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, अपनी मॉरल्स को, वैल्यूज़ को लेके जा रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं. आई थिंक वी एज ह्यूमंस, एज सिटीजन्स, हमारी फिर बड़ी जिम्मेदारी है कि जब हम देखते हैं कि चीज़ें बैलेंस नहीं हैं और बहुत ही कम रेशो से हमें चीजें नजर आ रही हैं, मानती हूँ कि कोई भी अगर शख्स, करें. खास तौर पे एक यंगस्टर इस वक्त अगर मेहनत करके एक्सेलेंस को परस्यू कर रहा है ना, तो उसको वो माहौल तो हम दे नहीं रहे. ये उसके माँ बाप की दुआएं हैं, घर की काविशें हैं, या उसकी अपनी जुस्तजू है. अनफॉर्चुनेटली हम एज अ सोसाइटी उसको कोई एक ऐसा माहौल, साजगार माहौल नहीं दे रहे, ना हम वो इनकरेजमेंट उसको दे रहे हैं. अगेन बिकॉज वी हैव लॉस्ट दैट हाई मॉरल ग्राउंड. तो हमें इन चीज़ों के ऊपर नज़र तो डालनी पड़ेगी. बार बार हम एक बात कहते हैं, एंड यू नो सारा भी हमारे साथ है. सारा को हम काफ़ी देर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं. सारा, कॉन्वर्जेशन हैज़ मूव फॉरवर्ड, बट वी वर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि अगर इन चीज़ों को सही करना है तो किसी के पास भी वो मॉरल हाई ग्राउंड नहीं है, किसी इंस्टीट्यूशन के पास नहीं है. एंड देन इफ़ इट नीड्स टू बी अप्लाइड, इट नीड्स टू बी अप्लाइड अक्रॉस द बोर्ड फॉर एवरीवन. लेकिन इन दोनों चीज़ों में जो बैरियर्स हैं उसके लिए तुम्हारे पास क्या हल है, और व्हाट डू यू थिंक कैन बी डन टू इम्प्रूव द सिचुएशन? मेरे पास ये सोल्यूशन है सिद्रा कि एक तो हम बहुत सारे लोगों को ब्लेम गेम खेलते हैं. हम तो सब लोग को कुछ ना कुछ ब्लेम दे रहे होते हैं, लेकिन आखिर में ये हमारे ऊपर भी होता है कि हम क्या करें. चूंकि हमारे ऊपर होता है, देयर इज दिस स्टीफन कवीज बुक, हाईली इफेक्टिव पीपल के बारे में, हैबिट्स के बारे में, जिसमें यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के बारे में. एंड उसमें ये होता है कि आप कैसे ये सोच सकते हो कि बाकी लोग क्या करेंगे, और सब आपको अपने ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए. और ये कि आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोगों के एक्शंस को. हमारा हर एक एक्शन वोट होता है एक तरीके से अच्छी आदत को अपनाने का. तो वो आपका वोट मल्टीप्लाई कर सकता है, एम्पलीफाई कर सकता है. यू हैव टू लुक एट दैट. दूसरा ये कि एडल्ट्स अगर जो ग्रोन अप्स अगर जो करेंगे, बच्चा देखेगा तो वो वही फॉलो करेगा. तो अगर आप एक ग्रोन अप हैं और आप एक रिस्पॉन्सिबल ग्रोन अप हैं, तो जो आप हरकतें कर रहे हैं, झूठ से लेके किसी बड़े से बड़े एक्शन का जिक्र कर लें, तो बच्चे आपको देख रहे हैं, हर वक्त ऑब्जर्व कर रहे हैं. दूसरा ये कि आपने वीडियो बनाने की भी बात की थी, उसके बारे में ये कहूंगी कि सोशल मीडिया पे जब आप कोई इस तरह की चीज डालते हैं जिसमें कहीं किसी का एक्सीडेंट हो गया, बहुत सारी मगिंग वीडियोस होते हैं जिसमें डकैती, चोरी, चकारी सब दिख रहा होता है, आप उस पर देखेंगे सबसे ज्यादा शेयर्स मौजूद होते हैं. आप अभी भी हमारा टीवी खोल के देखेंगे तो उस पर बैड न्यूज, थिंग्स दैट आर हैपनिंग क्रेजी इन दिस कंट्री, इन द सिटी, वो सब मौजूद होगा. हम अगर सुन ही हर वक्त बुरी चीजें रहे और हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे हमें रिवॉर्ड भी उन्हीं चीजों पे किया जा रहा है. सो व्हाट डू यू थिंक अ पर्सन वुड डू दैट? एक्सीलेंट पॉइंट. टू गेट द लाइक्स, टू गेट एप्रिसिएशन, टू गेट राइट कि बैड न्यूज एंड नेगेटिव एटीट्यूड्स ट्रैवल. बहुत शुक्रिया इसको भी रेज करने के लिए. तो बनाने से पहले प्लीज रिमेंबर कि आपका कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी क्या है. मे बी यू विल गेट अ लॉट ऑफ शेयर्स, लाइक्स एंड व्यूज, लेकिन इज इट समथिंग दैट यू वांट टू बी रिमेंबर्ड बाय? अगर इस तरह के सवाल आप अपने आप से पूछने लगे तो शायद आप खुद अपने ऊपर कुछ टोक लगा कर चीज़ों को बेहतर कर सकें. बट थैंक यू सो मच सारा, थैंक यू सो मच अनम फॉर बीइंग हियर. और इसी के साथ आज का प्रोग्राम, आज की कॉन्वर्जेशन इख्तिताम को पहुंचती है. लेकिन प्लीज़ डू थिंक अबाउट इट, एंड स्पेशली बिफोर यू फॉरवर्ड इट ऑल. आप उसके ऊपर मीम्स बना रहे हैं, उसके ऊपर हंस रहे हैं, लेकिन ये हंसने से ज़्यादा एक सोचने का, रिफ्लेक्ट करने का मौका है. इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए. इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होती है. खुदा हाफ़िज़.